you say filmmaking, right? But a film is so different. No, it does. That's my next question. It almost lends itself to what I'm asking you. आप एक फिल्म सेट को पूरी तरीके से कमांड कर चुके हैं. Here you're creating the show. ये जो एक बदलाव आया है, where you're also putting out content, लोग अपने मोबाइल स्क्रीन पे देख रहे हैं. Is there a different sort of challenge than what you do on the bigger screen? I feel it's a huge opportunity to begin with, that you can make a story of any duration that the story requires to be, that you don't have to fit a story of a film into a show and a show into a film, like I've been trying for years and years, decades in fact, to make a film on Dr. Arora, but I could never succeed because it doesn't suit that length, because we did not have these shows or these platforms before. Things like Dr. Arora and She, the two shows that we made, could never get made. So now we have the opportunity of doing this. That for me is a very interesting opportunity. The other thing is that it's a very, see, the thing is, I was getting a bit like agitated with age, because I thought I have so many stories, and much as I try, I cannot make or direct a film in quicker than 2 years or a year and a half at best. Na? So there were so many stories that will just, like, I will never be able to make them. Show running is not just lending your name, it's a lot of work, okay, for everybody who think, मैंने बहुत मेहनत की है यार डॉक्टर अरोरा में. Welcome to the master class by Mr. Imtiaz Ali. It's not, लोग ऐसा कह रहे थे कि जी आप तो ठीक है वो कोई और डायरेक्ट कर देगा. ऐसा लगता है कि डायरेक्ट करना बहुत बड़ी बात होती है, बट ऑलमोस्ट एवरीथिंग दैट अ डायरेक्टर डज, सॉरी ये दर्द निकल के आ रहा है. एक तो मेरा भाई है डायरेक्टर, दूसरा मेरा जूनियर है कॉलेज का, तो मैं बोल सकता हूँ ऐसी बातें. So, but there is work. Like it's a different medium. There is a different discipline in it. What you have to do is that you've got to be the creative goalkeeper, so to speak. And I think unanimously everybody loved the trailer. Every single person loved the trailer, and they had such lovely things to say about the fact that a very sensitive topic has been presented in a very real space. And without any gimmicks, there is no, uncomfortableness that can come associated with a subject like this. So I think that for me was a huge win, because you always want to be associated with stories which need to be told. And I think we are in that space right now with the advent of OTT, that we can afford to tell these stories as they are, with good makers and with great directors. So I'm happy that we were able to do that. तो उसका कॉम्बिनेशन क्या है आपके साथ, मतलब आप जब फिल्म आप डायरेक्ट कर रहे हैं इस प्रोग्राम को, और म्यूजिक का क्या रिलेशन है, कॉम्बिनेशन समझाइए, और इतनी इंपॉर्टेंस क्यों दी आपने म्यूजिक को? मुझे लगता है कि म्यूजिक वो चीज़ है जो मैं फिल्म मेकिंग में सबसे ज़्यादा एंजॉय करता हूँ. तो सिर्फ पर्सनल वजह से भी, सिर्फ म्यूजिशियंस के साथ वक्त बिताने के लिए, म्यूजिक के साथ वक्त बिताने के लिए मैं मौके ढूंढता हूँ और बहाने ढूंढता हूँ, और शायद उसी लिए मैंने इस शो में भी बहुत ज़्यादा म्यूजिक डालने की कोशिश की है. मगर जैसा कि मैंने पहले कहा कि म्यूजिक का और फिल्म मेकिंग का हिंदुस्तान में तो बहुत गहरा नाता है, तो ऐसी कोई वजह नहीं है कि डिजिटल शोज में इसको बरकरार नहीं रहना चाहिए. और दूसरी बात ये थी कि मेरे आसपास इतने टैलेंटेड लोग होते हैं, मैं मौके ढूंढता हूँ कि किस तरह से नीलाद्री के साथ कुछ काम कर लूँ, एक और गाना कर लूँ. वो फीलिंग जो आज महरम सुनते हुए हम सबको आई, वो फीलिंग बार बार आती रहे. तो उस वजह से मैं चाहता हूँ कि जितना संगीत होगा उतना अच्छी हमारी ज़िंदगी भी होगी और हमारे शोज भी होंगे. इम्तियाज for giving me तमाशा, such a different role. कोई भी सोच नहीं सकता था मैं वैसा रोल कर सकता हूँ. And for giving me Bangla. And so I mean it needs a really bold director to take a chance on you for such a role. I'm so tempted to ask you, आपकी टाइम है? I'm just kidding. That's the dialogue from Tamasha. Okay, Vidya, when you see Imtiaz Ali's name flash on your screen, do you even listen to the story, or you're like yes and yes? Okay, so there's a little story that I'm going to tell you. I think about 11 plus years ago, I watched Rockstar, and I don't know, I was completely and totally in love with that film, totally. And I messaged Imtiaz sir saying, how good the film was and everything. And one last line I added saying, even if I get to ever play a tree in your film,
I will play it. It will be my pleasure and honor. And he was, of course, very sweet and all that. He messaged back. But cut to 11 years later, here I am. I think he's given me a part of a lifetime. Vaishali is just, I don't know, I think my weird, crazy, beautiful dream come true for me. So, yes! Finally, 11.5 years later. Sandeepa, Can you imagine? Yeah. ये जब से इसका टीजर, इसका ट्रेलर, इसके फर्स्ट विजुअल्स आए, everybody has been talking about this show. And anyway, I think सोनी लिव का जो लाइनअप है, it's the best. लेकिन आपकी जो ह्यूमंगस सोशल मीडिया फॉलोइंग है, आपके दोस्त, आपके फैमिली मेंबर्स, what was their first reaction when they saw you in Dr. Arora? आप जब कुछ लिखते हैं तो एक इमेजिनेशन होती है ना आपके दिमाग में कि इस तरह का लगता है, दिखने में ऐसा है, उसी बेसिस पे आप कास्ट करते हैं. और मुकेश छाबड़ा जिन्होंने मेरे साथ कई फिल्में की हैं, उन्होंने कास्टिंग की इस फिल्म की. और जैसा कि अभी अजितेश कह रहे थे कि बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से कास्टिंग की, एक वर्कशॉप की तरह कास्टिंग हुई थी. तो आई थिंक हम लोगों ने कास्टिंग को भी बहुत ज़्यादा एंजॉय किया था. आपके साथ ऐसा नहीं हुआ, विद्या के साथ, बट कैरेक्टर के हिसाब से है, मतलब जो आप उसको समझाते हो कि हमें इस तरह का, जैसे बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो जिंदगी में वैसे नहीं होते जैसे उनको फिल्मों में होना पड़ता है. इसके लिए कास्टिंग डायरेक्टर और डायरेक्टर की नज़र होती है. हम सब ने मिलकर, साजिद अच्युत ने और मुकेश ने मिलकर फॉर इंस्टेंस ये डिसाइड किया था कि बागला साहब विवेक मुश्रन होंगे. विवेक और बागला का कोई आपस में संबंध ही नहीं है, एक दूसरे के विपरीत लोग हैं ये लोग. बट कुछ ऐसी चीजें होती है, जैसे मैं कुछ देर पहले संदीपा से बात कर रहा था कि एक चौड़ है या और एक अदा है कि मैं जो संदीपा जी ने, which I thought was very very nice for this part, and एसपी तोमर का और तुम्हारा भी कोई संबंध नहीं है, एक्चुअली विपरीत हो तुम लोग. बट थैंक यू फॉर सेइंग दैट. डोंट वरी, ठीक हो जाएगा. Pain in the lives of those people that have afflictions of a sexual disorder, because they feel the rest of the society tends to be judgmental about that. Also, the problem with these illnesses is that you usually feel discouraged to talk about it. Like I said, अगर हड्डी टूटेगी तो आप किसी से पूछ लोगे, यार बताओ कोई ऑर्थोडोंटिस्ट का, सॉरी ऑर्थोपेडिक डॉक्टर का नंबर बताओ, मैं करूंगा. बट अगर किसी को कोई पोटेंसी रिलेटेड या इस तरह की कोई डिजीज होती है तो फिर वो बातें भी नहीं कर पाता बेचारा. सो आई फील दैट देयर इज समथिंग दैट वी ओwe टू not only sex doctors but counselors etc. that talk to you about issues of, you know, performance in sexual like in sexual disorders. देखो टफ टॉपिक है, बट मैं चाहता था ना कि इस टॉपिक को बहुत आसानी से, सरलता से, ह्यूमर में, डिग्निफाइड तरीके से ये कहानी बने. तो म्यूजिक का रोल भी ये है कि हमने उस एरा को रिप्रेजेंट किया. हमें बहुत सारे गाने बनाने का मौका मिला क्योंकि हम उस एक बीती हुई एरा को दिखा रहे थे, 90s दिखा रहे थे. तो उस 90s के दशक की टाइप की म्यूजिक बनाने का मौका मिला. और उसके अलावा मैं तो मौके की तलाशी करता रहता हूँ कि कैसे मैं कुछ गाने बना दूँ, कुछ गाना फिल्म में ले आऊँ, बिकॉज फिल्म में गाना मुझे बहुत पसंद है खुद पर्सनली. तो वही जो मैं फिल्मों में करता हूँ वही मैंने यहाँ भी किया. No, कुमुद was my only choice actually, because मैंने उनके साथ पहले काम किया है और उसके अलावा मैंने उनके बहुत सारे शोज देखे हैं प्लेज के, जो खास करके मानव के साथ, मानव कॉल के साथ उन्होंने बहुत सारे प्लेज किए हैं. उन्होंने मुझे देख करके ये एहसास हुआ कि कुमुद मिश्रा बहुत टैलेंटेड एक्टर है और उसके अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें जो अभी तक प्रदर्शित नहीं हुई, एक्सपोज नहीं हुई ऑडियंस को. तो मुझे अगर मेरे सीरियल में आ जाएगा तो मेरे लिए अच्छा लगेगा. सर आज वो क्यों मौजूद नहीं, हम बहुत मिस कर रहे थे. अरे मैं तो उसको बहुत ज्यादा मिस कर रहा हूँ. इतना मिस मैंने कभी नहीं किया होगा कुमुद मिश्रा को जितना आज कर रहा हूँ. वो कहीं और शूट कर रहे, विदेश में शूट कर रहे हैं, तो आज यहाँ आ नहीं पाए. मुझे लगता है कि कॉन्स्टेंटली ओवर, देखिए पिछले
इन वर्षों में जिसमें मैं जीवित रहा हूँ, मैंने देखा है कि सेक्स एजुकेशन धीरे धीरे स्कूलों में आया, लोगों ने धीरे धीरे बात करना शुरू किया, घरों में ये बातें होने लगी हैं, ये धीरे धीरे हो रहा है। अभी बहुत समय लगेगा बिकॉज हम लोग काफी बड़ी पॉपुलेशन है हमारी, जो शहरों में होता है जरूरी started to watch different things. Their tastes have been refined because for the last 2 or 3 years going out and interacting with other things was not possible. So लोगों ने बहुत शोज देखे डिजिटल प्लेटफॉर्म पे, उनके टेस्ट भी बहुत डेवलप कर चुके हैं एंड एज अ रिजल्ट हमें मौका मिल रहा है कि अलग अलग तरह के शोज बनाओ। जब तक अच्छे से बनाओगे तो लोग जरूर देखना चाहेंगे। प्रॉब्लम आपकी तब सॉल्व होगी मैडम जब आप देखोगे ये वाला शो डॉक्टर अरोड़ा जो 22 को आने वाला है। किसी महान व्यक्ति ने कहा है कि हर कहानी प्रेम की कहानी ही होती है, ये सच है कि झूठ है इसका पता चलेगा 22 तारीख को। मैं ये जानना चाहती हूँ कि आपको जब भी सुना सितार के साथ बहुत ही अलग अनुभूति आती है, क्या उस सितार को, उस वाणी को, उस स्वरों को हम आपके इस प्रोजेक्ट में भी सुन सकेंगे? ये सितार इसमें आपने गाने के जरिए जो फिलर्स होते हैं, जो अकम्पनीमेंट होता है, इसमें जो 2 गाने हैं खालीपन और अभी महरम जो आपने सुना, इसमें थोड़ा सा अंश है उसका। और जहाँ तक सितार का स्वर की बात कर रहे हैं, वो मेरा जो स्वर है जो मैं सितार के जरिए आपको सुनाता हूँ, वो मैं इम्तियाज सर के इस क्रिएशन के जरिए आप तक पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ। थैंक यू, थैंक यू। A director in this time or a storyteller in this time, because you can make a story of any duration that the story wants to be. You don't have to fit to fill anymore. And there are a lot of things that you could not place in cinema before that you can now, like this show. You know, there are so many things that we think about but we don't make movies on. And I think the digital platform or this digital revolution that has happened enables us to go into those thoughts and make stories out of them. Yeah, so thank you so much Luna for having us first of all. ये गाना मुझे actually मिला ये post lockdown की बात है। Samira, I remember she called me and she was like, we are trying this new singers on this song, so we'd love to give it a shot to your voice. तो मैंने सोचा कि ऑफ कोर्स नीलाद्री कुमार सर का फैन मैं बहुत शुरुआत से हूँ और इट वुड बी एन ऑनर टू बी एसोसिएटेड विद हिम। एंड देन वी जस्ट ट्राइड द सॉन्ग। तब तक मीनल ऑलरेडी रिकॉर्ड कर चुकी थी गाना एंड शी वाज साउंडिंग फैबुलस एंड इज साउंडिंग फैबुलस। तो गाना ऑलरेडी इतना सुंदर बन चुका था, उसके ऊपर मैंने बस थोड़ा बहुत अपना I've just like played around a little bit and it has come out so beautifully. So it's a dream come true। इम्तियाज सर के साथ भी ये मेरा पहली बार एसोसिएशन है। I'm really happy with the way the song is sounding. आपसे जानना चाहूंगी, ये पहली बार नहीं है जब लैला मजनू की आपकी आवाज जी आपने जब काम करती थी तब कुछ अंतर आया था? जब मुझे पता पड़ा, एक्चुअली ये सॉन्ग मैंने स्टेज पे भी कहा कि बहुत लोग कह रहे हैं मैनिफेस्टेशन एक बड़ा वर्ड चल रहा है अभी। आई वॉज लिसनिंग टू आहिस्ता। नीलाद्री जी ने लैला मजनू में ही आहिस्ता एक गाना दिया है जो मुझे बहुत पसंद है और मैं वो लूप पे सुन रही थी काफी दिनों से एंड आई वाज जस्ट थिंकिंग कि यार ऐसा गाना गाना है मुझे, इस तरह का गाना गाना है। और सडनली आई कम टू नो दैट मेरे इंस्टाग्राम में एक मैसेज आया हुआ है समीरा का इंस्टाग्राम इनबॉक्स में कि वी आर सर हैज हर्ड योर वॉइस एंड वी वांट यू टू ट्राई। तो ऐसे एक्चुअली ऑनेस्टली इनबॉक्स में ऐसे बहुत सारे मैसेजेस आते हैं। So I didn't even know Samira that time. Ki who Samira? Is she really Niladri's manager? Yeah. It's like everything you question, But then because it was written so formally and nicely, I got back to her and you won't believe every time we spoke till the time this happened, it was in the night as in around 3-4. So that is I was not even sure कि ये real है कि नहीं. But it so happened that he had heard me somewhere. And he asked her to track me down and make me a part of this. I am telling you, it was so beautiful. This song has come to me in my life at a very very crucial time, and I'm so glad कि I'm a part of it. And the whole team, Imtiaz sir and Sajid. तो मैंने जब लैला मजनू में भी गाया था तब Sajid was so encouraging.
So this song is very special to me, Irshad bhai, and again Abhay is a friend, a fantastically known singer. अभय से भी मेरी कहानी जुड़ी हुई है. जब हम दोस्त भी नहीं थे तभी मैं इनका गाना अपनी लाइफ के एक और बहुत क्रूशियल टाइम पे सुन रही थी ऑन लूप. His first debut, and this is our first duet, so it is in lot many ways a very very special song for me. और बहुत ही खूबसूरत composition, बहुत ही खूबसूरत lyrics, and I'm so glad to be a part of it. And it's Abhay and me, we have just poured our heart into it.